Hello everyone, welcome to Raj IAS Study Group. My name is Harjeet Kaur and I am your reasoning tutor. How are you? कैसे हैं आप सब? In today's session, we are going to discuss ranking question that was asked in CSAT 2020. As you have seen earlier videos, we have already done all the reasoning questions that was asked in CSAT 2021 and CSAT 2022. Now we have moved to CSAT 2020. Ranking is very important topic. Every year, one or two questions have been asked from this topic. So let's check the question and then we will do the concept. The question that was come in the paper is like this. We have given A's rank, we have given V's rank and G's rank. We have to tell how many boys are there in the row. So let's check the questions concept. We have ranking two types. We have two types of ranking position based and ranking arrangement. The question that was asked in the paper is of ranking position based. हमें रैंक दिया होता है इसमें बच्चे का लेफ्ट हैंड साइड, टॉप और फ्रंट. It means the rank is from starting. If the rank is from left hand side, top and front, it means the rank is from start. If the rank is from right hand side, bottom end, we have the rank from the other side, matlab right hand side. Clear? In this type of questions, we have to make a line. If the rank is from left is given, we have to write it here. If the rank is from right is given, we have to write it here. जब तक क्वेश्चन में मिनिमम वर्ड नहीं है तो लेफ्ट इधर रहेगा, राइट इधर रहेगा. क्लियर? तो मिनिमम इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, सो वी आर नॉट कंसिडरिंग राइट ओवर हेयर और लेफ्ट ओवर हेयर. सो जब तक मिनिमम नहीं है तो लेफ्ट हेयर, राइट हेयर. तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज A is 16th from the left in a row of boys. So I point A here, 16th from the left. And V is 18th from right. So V I place here 18th from right. Next is G is 11th from A towards right. Towards the right. तो G कहाँ पर है? A के right पे. तो A का right यहाँ होगा. This is left and this is right. तो G यहाँ पर होगा. G यहाँ भी हो सकता है या V को क्रॉस भी कर सकता है. ठीक है. तो G is 11th from right. यहाँ पर हो जाएगा 11th यहाँ पर या यहाँ पर. We have to read the next line also. And means G की बात हो रही है. If the word and but is here, तो किसकी बात हो रही है? फर्स्ट पर्सन की. If the word who and which is here, तो किसकी बात हो रही है? जो उसके साथ है. अब and मतलब G की बात हो रही है. G एक तो 11th from left, 11th है A के राइट पे. ठीक है. और कहां पर है? G is third from V. V से थर्ड है और कहां पर है? राइट पे. तो V के थर्ड राइट पे. तो यहां आ जाएगा G. सो आई प्लेस G हियर. अब यहां से अगर मैं देखूं तो 11th राइट, तो ये 16th लेफ्ट था. तो 11th, ठीक है, मुझे 11 पोजीशंस बढ़ाना है. तो 16 प्लस 11 दैट इज 27th लेफ्ट. तो G लेफ्ट से कितना हो गया? 27th लेफ्ट, क्योंकि ये 16th लेफ्ट था तो 11 पोजीशंस आगे जाएगा. तो दैट इज 27th लेफ्ट. अगर मैं यहां से देखूं V से तो G का रैंक राइट से आ जाएगा. दैट इज 18th राइट. तो ये 17, ये 16, ये 15th राइट. तो G मेरे पास राइट से कितना आ गया? 15. अब देखिए यहां पे कंफ्यूजन होती है कि मुझे प्लस करना है कि माइनस करना है. अब देखिए जब मैं इधर से जा रही हूं, इट्स 1, इट्स 2, इट्स 3, इट्स 4, इट्स 5. तो जब हम यहां से इधर को जा रहे हैं, इट्स डिक्रीजिंग. तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है. तो राइट से जब मैं इधर को जाऊंगी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है. 18th राइट, तो 17, 16, 15. तो 15th राइट. I got the rank of G from both the sides, left hand side and right hand side. The question is how many boys are there in the row? We have to find the total boys. To find the total boys, we have calculate one's person G's position from left and right. So formula is 27 plus 15 minus 1. -1 क्यों किया? क्योंकि G दो बारी काउंट हो गया. G का रैंक 27th लेफ्ट भी है और G का रैंक 15th राइट भी है. तो G is counted twice. तो I subtract 1. ठीक है. तो इसमें आंसर आ जाएगा 41.
So total boys are 41. That is option number B. क्लियर जी? तो अब इसमें मेरा कौन सा रूल यूज हुआ है? अगर मेरे पास एक ही बच्चे का रैंक आगे से भी आ जाए, पीछे से भी आ जाए, लेफ्ट से भी आ जाए, राइट से भी आ जाए, तो वी कैन फाइंड टोटल बॉयज इजीली. देखिए दोबारा, अब देखिए G27 है लेफ्ट से. इट मींस G के इधर कितने स्टूडेंट्स हैं? 26. अगर वो 27 है लेफ्ट से, तो इसका मतलब इधर कितने बच्चे हैं? 26. अगर G राइट से 15 है, राइट से 15 मतलब इधर कितने बच्चे हैं? 14. 14 के बाद 15 आता है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे किया, तो दैट इज 15. तो 14 बच्चे इधर आ गए. तो नेक्स्ट इसको हम किस तरह से कर सकते हैं? 26, G के लेफ्ट में 26 प्लस एक G और G के राइट में 14. तो टोटल बच्चे कितने आ गए? 14 प्लस 1 15, 15 प्लस 26 अगेन 41. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. क्लियर जी? हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एक ही बच्चे का रैंक आ गया, दोनों को ऐड -1. ठीक है, या हम ऐसे भी देख सकते हैं कि ये 27 लेफ्ट है तो इधर 26 आ गए, ये 15 राइट है तो इधर 14 आ गए. तो इधर 26 है, एक G हो गया और इधर 14 हो गए. तो टोटल इस रो में कितने स्टूडेंट्स आ गए? 41. चलिए इसी जैसा सिमिलर एग्जाम्पल करते हैं. इन अ रो ऑफ गर्ल्स, पिछले वाली रो में क्या थे? बॉयज थे. तो अब गर्ल्स की रो है फेसिंग नॉर्थ. रीना इज 10th टू द लेफ्ट ऑफ पल्लवी. रीना कहां पर बनानी है? पल्लवी के 10th लेफ्ट में. एंड पल्लवी इज 21st फ्रॉम द राइट एंड. सो हेयर इज पल्लवी और पल्लवी कहां पे है? 21st फ्रॉम राइट एंड. राइट एंड से 21st. तो ये आ गई पल्लवी. अब रीना इसके 10th लेफ्ट पे, तो रीना इधर आ जाएगी 10th लेफ्ट पे. अब देखिए जब हम इधर को जा रहे हैं, इधर से, ये देखिए राइट से अगर मैं पोजीशन वैल्यूज ऐसे लिखूं तो इट्स इंक्रीजिंग. तो 21st प्लस 10 दैट इज 31st राइट. तो रीना का रैंक अपना कितना आ गया? 31st राइट. आगे पढ़ते हैं. इफ मालिनी हु इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड. अब मुझे मालिनी बनानी है जो कहां पर है? 17th लेफ्ट में. इज 4th टू द राइट ऑफ रीना. रीना के 4th राइट पे है. अब देखिए मालिनी इधर भी आ सकती है, इधर भी आ सकती है. अब मुझे बोला कि जो मालिनी है वो कहां पर है? रीना के 4th राइट पे. तो ये मैंने मालिनी बनाई. अब मालिनी का एक रैंक तो मुझे दिया हुआ है, दैट इज 17th लेफ्ट. अब मैं इसका राइट हैंड साइड से रैंक निकाल लूंगी क्योंकि वो रीना के 4th राइट पे है. तो रीना का 4th राइट 1 2 3 दैट इज 4th राइट. इफ इट इज 31 तो ये 30 आ गया, ये 29 आ गया, दैट इज 28 एंड दिस इज 27th राइट. तो मालिनी मेरे पास लेफ्ट से भी आ गई, राइट से भी आ गई. ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड. अगर हम ऐसे जाएंगे इट्स वैल्यू इंक्रीजिंग, अगर हम ऐसे जाएंगे तो वैल्यू क्या होगी? डिक्रीजिंग. क्लियर जी? लिख लीजिएगा, क्वेश्चन गलत मत कीजिएगा, प्लीज राइट इट. ठीक है, तो यहां पर देखिए दैट इज 31 30 29 28 27th राइट. क्योंकि उसने मुझे बोला मालिनी इज 4th टू द राइट ऑफ रीना. ठीक है, 4th टू द राइट ऑफ रीना, तो रीना के 4th राइट पे इधर बना ली मैंने. तो वी गेट द मालिनीज रैंक फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट. अगेन आई एम अप्लाइंग द फॉर्मूला. मालिनी का लेफ्ट से भी रैंक है, राइट से भी रैंक है. So 17 plus 27 minus 1. So answer is 17 plus 26, 43. So answer is 43. Again, अगर मैं इसको दूसरे तरीके से करना चाहूं, I got Malini that is 17 from left. So it's Malini के इधर कितने बच्चे हो गए? 16. Malini is 27th from right. तो इधर कितने आ गए? 26. 16 plus Malini plus 26. तो 17 प्लस 26 दैट इज 43. क्लियर जी? ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए इफ वी हैव वन पर्सन लेफ्ट एंड राइट बोथ, ठीक है, लेफ्ट की पोजीशन भी आ गई, राइट की आ गई, तो दोनों को ऐड कीजिए और -1 कर दीजिए. चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन पे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन रैंक्स 5th इन अ क्लास. अब मुझे क्वेश्चन में नहीं बताया कि एन जो है 5th है क्लास में, स्टार्टिंग से है कि राइट से है. तो अगर कुछ भी नहीं बताया होता, इट्स फ्रॉम स्टार्टिंग, मैं क्लास में 7th आई, आई एम 7th फ्रॉम इन क्लास, तो कहां से आई होंगी? बाय डिफॉल्ट स्टार्टिंग से. तो एन इज 5th फ्रॉम स्टार्टिंग.
S is 8th from the last, तो I put here S is 8th from the last. If T is 6th after N, तो T कहां पर है? 6th after N, तो इसका 6th after N मतलब T यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, N के बाद होना चाहिए, after N, यहां या यहां, एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ एंड एंड एस. आगे उसने मुझे क्या बोल दिया कि जो T है वो कहां पर है? N और S के मिडल में, और ये 6th है, तो 5 + 6, 5 + 6 11th फ्रॉम स्टार्टिंग, तो T का रैंक आ गया 11 फ्रॉम स्टार्टिंग. The question is how many students are there in the class? Again the question is how many students? As you know we are doing similar question. ठीक है, तो मुझे how many students निकालने हैं, तो that is T is 11th from starting, और मुझे बोला है कि जो T है वो बिल्कुल इन दोनों के मिडल में है, तो इनके बीच के स्टूडेंट्स देख लीजिए. अब ये देखिए ये 5 है, ये 11 है, तो बीच में कितने स्टूडेंट्स आ गए? 5. अब 5 और 11 के बीच में 6, 7, 8, 9, 10. ठीक है, तो ये 5 बच्चे बैठे होंगे जिसका रैंक 6th होगा, 7th होगा, 8th होगा, 9th होगा, 10th होगा. ये बिल्कुल मिडल में है, तो 5 इधर और 5 इधर, क्योंकि सेम बच्चे होंगे. अब मुझे टोटल स्टूडेंट्स निकालने को बोला है, टोटल स्टूडेंट्स निकालने, तो टोटल स्टूडेंट्स, अब इस केस में हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? यही वाला. अब ये देखिए, एक लेफ्ट एक राइट प्लस बीच के बच्चे. अब टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए एक और फॉर्मूला होता है, लेफ्ट प्लस मिडल स्टूडेंट्स प्लस राइट. अब ये जो लेफ्ट और राइट है, ये दोनों स्टूडेंट्स अलग अलग होने चाहिए. ठीक है, लेफ्ट और राइट जिसका आपने लिखना है, बोथ स्टूडेंट्स आर डिफरेंट. अब देखिए एन का लेफ्ट से रैंक कितना है? 5. ठीक है, राइट से एस का रैंक कितना है? 8. अब इन दोनों के बीच के स्टूडेंट्स 5 और 5, 10 और एक टी, तो बीच में कितने स्टूडेंट्स आ गए? 11. 5 इधर 5 इधर, टी, तो बीच में कितने स्टूडेंट्स आ गए? 11. तो 5 + 11 16, 16 + 8 24 students are there. So answer is 24. ऑप्शन नंबर बी. क्लियर जी? अब मेरे पास टोटल स्टूडेंट्स निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूला है, तो पहला हमने कर लिया, दूसरा भी हमने किया. दूसरे में हम क्या करते हैं, अगर मेरे पास, ठीक है, एक का लेफ्ट है एक का राइट है और बीच के बच्चे दे दिए, तो वी कैन ऐड देम, क्योंकि ये पूरी रो है. ठीक है, N5 है, S8 है और बीच में ये आ गया. इसको हम दूसरे तरीके से भी कंसीडर कर सकते हैं. अब N is 5th फ्रॉम स्टार्ट, इट मींस N के इधर कितने बच्चे आ गए? 4, क्योंकि N क्या है? 5th फ्रॉम स्टार्ट, तो इधर आ गए 4. S is 8th फ्रॉम लास्ट, तो इसके इधर कितने बच्चे आ गए? 7, क्योंकि 8वां नंबर है, तो 7 स्टूडेंट्स आर देयर, तभी वो 8th पोजीशन पे आया. टोटल स्टूडेंट्स 4 प्लस एक N, अब ये बीच के बच्चे 11 प्लस एक S प्लस 7. तो अगर देखें 4 + 1 is 5, अगेन 1 + 7 is 8. तो मैंने क्या किया? 5 + 11 + 8 ही तो किया. क्लियर जी? ठीक है, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन जैसा भी आ जाए, यू कैन डू दैट क्वेश्चन इजिली. चलिए, लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस सिमिलर क्वेश्चन. इन अ रो ऑफ 40 चिल्ड्रन, देखिए मेरे पास अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए, वी हैव टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ठीक है, अब यहां पर मेरे पास ऑलरेडी गिवन है 40 चिल्ड्रन आर देयर. P is 13th from left, तो I place P here, 13th from left. There is no minimum question, so P I place here. Q is 9th from right, so Q is 9th from right. How many children are there between P and R? The question is P और R के बीच में कितने बच्चे हैं? If R is 4th to the left of Q, अगर R कहां पर है? Q के 4th लेफ्ट में, तो अब देखिए R I प्लेस, क्योंकि इसका लेफ्ट इधर होगा, सो R यहां आ जाएगा 4th लेफ्ट. अब देखिए राइट हैंड साइड इधर को जा रहा है, इधर से जाएगा, पोजीशन वैल्यूज क्या होंगी? बढ़ेंगी. तो ये 9 हो गया, 10 11 12, इट्स 13th राइट, तो R is 13th राइट. ठीक है जी? The question is we have to find how many students are between P and R. ठीक है, अब मेरा फॉर्मूला जो मैंने अभी लेटेस्ट अभी आपको फॉर्मूला करवाया था, क्या था? टोटल स्टूडेंट्स इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस मिडल प्लस राइट. ठीक है, वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला. टोटल स्टूडेंट्स वी हैव 40, लेफ्ट 13, मिडल स्टूडेंट्स वी डोंट नो, एंड राइट इज 13. तो 13 + 13 is 26.
तो 26 plus middle. So we have to find the middle. So 26 goes here. 40 minus 26 equals to middle. So answer is 14. 14 students are in between P and R. How many students? 14 students. Again I am repeating, we have given total students, that is 40. P is 13th left, Q is 9th right. And we have to find how many children are there between P and R. If R is 4th to the left of Q. R कहाँ पर है? Q के 4th left में. It's 9th right, 10th right, 11th right, 12th right, 13th right. We have to point these persons carefully. ठीक है, अगर हमने इसको 9th right से बढ़ाया नहीं, कम कर दिया, तो हमारा आंसर गलत आ जाएगा. So please आप इसको लिख लीजिएगा कि जब हमने right से जाना है, we have to, यहां से बढ़ेंगे तो पोजीशन वैल्यू बढ़ेगी. तो 13th right and 13th left, we have to find this case. तो हमारा फॉर्मूला एक ये भी है, टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस मिडल प्लस राइट. ठीक है, हमारे पास टोटल बच्चे निकालने हैं, तो लेफ्ट के बच्चे, बीच के बच्चे प्लस राइट के बच्चे. वी गॉट 13 प्लस x प्लस 13 इक्वल्स टू 40. सो आंसर इज 14. क्लियर जी? होप यू कैन अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट. फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर आवर वीडियो. थैंक यू.